Chapter number 2, part 1, functions, and we are starting with types of functions. Listen to me very carefully, and if you don't understand, please ask. First is constant function. कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? नंबर। मतलब फंक्शन, ये लिखने का मेथड है, फंक्शन इज आर टू आर given by r to r is given by fx equals to k, where x belongs to r, is called a constant function. For example, if I say x is equal to 3 is a constant function, or you can say fx is equal to 3 is a constant function. For example, if in question there is no terms of x or y, only number appears, then that type of function is called as a constant function. Getting it? Y का वैल्यू 3 होना चाहिए. In textbook there are lot of graphs given, ना वो कुछ देखना मत, उसमें कुछ टेंशन वाला बात नहीं है. पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, बराबर है. तो f r to r is given by x is equal to y और y is equal to x. फिर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो x is equal to 3 है, ये fx मतलब y होता है, fx is nothing but y, remember. So y is equal to 3 का लाइन आ गया. This is equation of y is equal to 3. This is the graph of fx equals to 3. जरूरत तो नहीं है लेकिन ठीक है. y is equal to x का ग्राफ कैसा आएगा, कोई बता सकता है? How we can draw the graph of y is equal to x? Anyone? x और y का वैल्यू, सुटेबल वैल्यू ले लो. अगर x का वैल्यू 1 है तो y का भी वैल्यू क्या आएगा? 1. x का वैल्यू 2 है तो y का भी वैल्यू आएगा 2. समझ रहे हो क्या बात? So it will start from origin. This is called as a, ये नीचे भी साथ जा सकता है. This can be downward also, because if I take x is equal to -1, y will also be equals to -1. बोलो, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? रिप्लाई करना है सबको, हाँ या ना. Any doubts, any question, please ask. This is the graph y is equal to x or x is equal to y. Next is linear function. लीनियर फंक्शन में x का टर्म आएगा, सिंगल x का टर्म आएगा. फॉर एग्जांपल, अ फंक्शन f is r to r is given by fx is equal to 2x plus 3. कुछ भी हो सकता है. That is y is equal to 2x plus 3. This is called as a linear. Linear मतलब कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. x या y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे लीनियर फंक्शन. उसको हम बोलेंगे लीनियर फंक्शन. ग्राफ बनाने का जरूरत है तो you can choose the value of x and y and draw the graph. For example, if you want to graph, let me show you how to draw the graph of this. This is already you have done in 10th standard, yes?
This is x, this is y, this is x comma y. Now select a value of x 0. 2 into 0, 0 plus 3 will be 3. So first point is 0 comma 3. Select x equals to 1. 2 ones are 2 plus 3. 2 ones are 2 plus 3, 5. So this will be 1 comma 5. Getting it? And select x is equal to 2. 2 2s are 4 plus 3, 7. It will be 2 comma 7. Draw the graph. That's it. Quite easy. So 0 comma 3 कहाँ पे आएगा? 0 comma 3 यहाँ पे आएगा. 1 comma 5, 1 comma 5 यहाँ पे आएगा. And 2 comma 7 कहाँ पे आएगा? 2 comma 7 यहाँ पे आएगा. Got this graph? लिख लो आराम से और पूछो मुझे क्या पूछना है. आप नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा आपको, हाँ, बाद में. फिर मुझे आंसर करना. बिंदास पूछेंगे, कोई भी फियर नहीं है. यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन. यस 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 हिमांशु. The question will be given, identify the types of function, then you have to use this. कौन सा function है? Question will be identify. I am giving you the types of function. Then we have to identify which type of function is given in the question. That's it. We don't have to draw any graph. Don't worry. I am just giving the example how to identify. If there is a single number, then it is a constant function. If there are identical terms, then it is identity function. If they are only x ka coefficient, power of x or y will be only 1, then it is a linear function. Done? हो गया क्या? जवाब दो मुझे. हो गया तो मैं निकाल रहा हूँ ये. हाँ. हाँ. Identity function is when both the numbers are equal, both the functions are same. That is y equals to x, या x equals to y, या x square equals to y square, या x cube equals to y cube. सेम होने चाहिए दोनों भी. x और y का वैल्यू अगर x 1 है तो y भी 1 होगा. जैसे आप अपने आप को आईने में देखोगे तो सेम दिखेगा या अलग. लेटरल इमेज लेटर होगा, लेकिन जो दिख रहा है इमेज वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा. सेम. यस. तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी. सेम होना चाहिए. ये फंक्शन x है तो ये फंक्शन y, बट दोनों के बीच में कौन सा साइन है? इक्वल. दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन. मतलब x 1 है तो y भी 1, x 2 है तो y भी 2. क्लियर? हाँ. यस सर. आगे बढ़े. Is this done? Should I rub it out? Is this done? हाँ. यस सर. Okay, okay. I will ask each and every one of you, huh? So please ask the question. नहीं समझा आप बिंदास पूछो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार पूछो. जब तक समझ में नहीं आया तब तक पूछो. But make sure you have understood anything, everything. Number 4, quadratic function. Quadratic नाम सुना है? Quadratic equation. The function is of the form f is r to r such that fx equals to. quadratic equation का standard form क्या है? quadratic equation का standard form ax square plus bx plus c. शाबाश. ax square plus bx plus c. So this type of example we can say y is equal to 3x square plus 4x plus 2. Okay, this is called as quadratic equation. This is called as quadratic equation or quadratic function. Linear function और quadratic function में क्या फर्क है? What is the difference between linear and quadratic? What is the difference between linear function and quadratic function?
एनीवन? लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या फर्क है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दो। टू वेरिएबल। वेरिएबल तो उसमें भी 2 था, 2x प्लस 3। यहाँ पे तो 3x प्लस 4x प्लस 2। और कोई आंसर? ये गलत है। स्क्वायर, लीनियर में स्क्वायर नहीं होता। लीनियर में x का पावर हाँ हमेशा 1 रहेगा। लीनियर हाँ में x का पावर 1 होगा, क्वाड्रेटिक में x का पावर 2 होगा। लीनियर विल ऑलवेज हैव कोई पावर ऑफ x विल बी 1। इन क्वाड्रेटिक पावर ऑफ x विल बी 2। लिख लो, नोट कर लो। इन लीनियर dx का पावर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1, दैट इज ax प्लस b के फॉर्म में आएगा। एंड इन क्वाड्रेटिक you have x का पावर is 2 ऑलवेज, हमेशा। डन। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ द फॉर्म a इंटू एक्स रेस टू एन। अभी ये देखो, ये कौन से टाइप का आएगा? इसमें आएगा फर्स्ट स्क्वायर फंक्शन, मतलब fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 4 आएगा। समझ में? सेकेंड वन इसका आएगा क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन, you can say fx is equal to x cube or y is equal to, that is y is equal to x cube। स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन, ये दोनों a इंटू एक्स रेस टू एन में आएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं और एक एग्जांपल लेना चाहूँ, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर या 4x स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब भी लिख सकता हूँ। नंबर कुछ भी होगा, a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। So anything if you see in square or cube, you can say it is a square function or it is a cube function। Getting it? हाँ। वेरी गुड। चलो, कोई क्वेश्चन है किसी को? पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें x का पावर कुछ भी हो सकता है, 3 से ज्यादा। और ये लंबा इक्वेशन आएगा, a0 x रेस टू n प्लस a1 x रेस टू n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लिखाता हूँ तो fx is written as x cube plus x square plus x minus 1, or you can say fx is equals to x raised to 4 plus 3x cube plus 4x square minus x plus 10. These are called as polynomial functions। और मैं और एक लिख सकता हूँ, fx is equal to x cube minus 1, x cube minus 1। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा। सिर्फ एक्स क्यूब आएगा, सिर्फ एक्स क्यूब तो क्यूब फंक्शन होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 आएगा तो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। इसके बाकी के जो टर्म्स है वो सब जीरो हो जाएंगे। बट इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट विल नॉट बी अ क्यूब फंक्शन। अ क्यूब फंक्शन ओनली कंटेन्स एक्स क्यूब। प्लीज रिमेंबर, अ क्यूब फंक्शन विल ओनली कंटेन एक्स क्यूब। स्क्वायर फंक्शन विल ओनली कंटेन एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, नो अदर टर्म। बराबर, ये 3x स्क्वायर हो सकता है माइनस 2x क्यूब, लेकिन यहाँ पे इसके साथ प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा। अगर इसके साथ प्लस माइनस कुछ हुआ तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा।
Please try to understand, and if you're not getting anything, please ask me 2, 3, 4 times. Don't worry about it. Your understanding is important. Everyone has got different mind, so don't worry about it. If you are not getting it, you have to ask. हो गया, आगे बढ़े। हाँ नंबर 5, नंबर 6। हाँ, वेरी गुड। नंबर 7, रैशनल फंक्शन। धोनी का नंबर आ गया, नंबर 7, महेंद्र सिंह धोनी। रैशनल फंक्शन में क्या होगा? डिनोमिनेटर आएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सिंपल। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्स पी एक्स बाय क्यू एक्स। फॉर एग्जाम्पल, we can say y is equal to 2x plus 1 upon 3x minus 1. This is called as a rational function. Simple. Number 8, exponential function. Exponential function में पावर आएगा x के फॉर्म में, पावर x के फॉर्म में पावर, y is equal to या fx is equal to a raised to x. That is, you can say y is equal to 3 raised to x, y is equal to 5 raised to x, anything. Power would be in the form of x. That type is called as exponential function. And last one is logarithmic function. Logarithmic function में log आएगा, log LOG, log मतलब logarithm। ये इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, अभी आपको ये साल निकाल दिए, तो ये भी बहुत इजी चैप्टर है। logarithm, इसको पढ़ते हैं log बेस a x, log बेस a x, log बेस a x, ऐसा। ठीक है, इसको कैसे रीड करेंगे? इस तरीके से रीड करेंगे, जहां पे भी लॉग दिखा वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। जैसे y इज इक्वल टू, बेस नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, यू कैन राइट log टू द बेस नथिंग e, दिस विल बी 3, y इज इक्वल टू log 4 या log 5 या कुछ भी लिखो, लॉग दिखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ लॉगरिथमिक फंक्शन।
चलो आगे बढ़े। आज के लिए फंक्शंस की टाइप इधर ही रोकते हैं, आगे के बाद में टाइप देखते हैं, नहीं तो एक साथ सब जमा हो जाएगा तो कुछ आएगा नहीं। टोटल 9 फंक्शंस देखे, 9 टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे। आप लोग रिवाइज करो, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। सब फंक्शंस एक बार आपके आंख से रीड करके बताओ मुझे, मैं पूछूंगा जिसको बताएगा मुझे आंसर, ठीक है। रीड नाउ टाइप ऑफ फंक्शन एंड आई विल आस्क any one of you, you have to give the answer. We'll start exercise 2.1. Question number 1. Check the following relations are function. मैंने बोला था रिलेशन फंक्शन कब होगा, बताओ। Following relation are functions. Yes. When the relations are functions. Anyone? मैंने आपको बताया था कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा, कोई बता सकता है आप लोगों में से? एनीवन? दोज हू नो प्लीज आंसर। सर When क्या? we say a particular, when a relation can be a function. मधुश्री? जब फंक्शन का कोई भी टाइप रिलेशन में आया हो तब। नहीं। मधुश्री? जब मतलब वो नंबर When a वगैरह का, relation can be a function. जब वो नंबर या फिर वो वेरिएबल का कोई रिलेशन रहेगा, लाइक नहीं। 3x इज इक्वल्स टू y या फिर 4x इज इक्वल्स टू y वगैरह, ऐसा कुछ। करेक्ट करेक्ट, मतलब they are connected with, yes, शाबाश, very good. When they are connected with a particular mathematical formula. When they are connected with a particular mathematical formula. जैसे भी y is equal to x होने दो, y is equal to x square होने दो, y is equal to 1 upon x होने दो, y is equal to x plus 2 होने दो, कुछ ना कुछ उन दोनों का मैथमेटिकल फॉर्मूला बनना चाहिए, तो ही वो फंक्शन रिलेशन होगा, तो ही वो रिलेशन फंक्शन होगा। अगर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बन रहा तो वो फंक्शन रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नाउ टेल मी द टाइप्स ऑफ फंक्शन। रिया, कोई भी एक टाइप बता। रिया, टेल मी एनी वन टाइप ऑफ Constant function which will only have numbers with it. शाबाश शाबाश। हिमांशु, कोई भी एक टाइप बता कांस्टेंट को छोड़ के। हिमांशु, टेल मी एनी वन टाइप ऑफ फंक्शन अदर देन द कांस्टेंट फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन। उसमें क्या होता है? एग्जाम्पल, अगर when we apply x square plus bx plus c, जो आंसर मतलब 3x square जैसा है उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। इसमें x का पावर 2 होना चाहिए, बराबर? हाँ। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज अ लीनियर फंक्शन? दक्ष, व्हाट इज लीनियर फंक्शन? हेलो, जिसमें 2x plus 3 टाइप का क्वेश्चन होगा, मतलब x का जो कोएफिशिएंट, x का जो पावर है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दक्ष, वेरी गुड। हिमांशु, रिया, मधुश्री, व्हाट इज लॉगरिथमिक फंक्शन? जिसमें लॉग आता है। जिसमें लॉग आता है। और a रेज़ टू x वाला फंक्शन को आंचल क्या बोलेंगे? a रेज़ टू x वाले फंक्शन को क्या बोलेंगे आंचल? Exponential function. Very good. Yeah, what is the function called if it is only x square? Square function. Very good, very good. Himanshu, what the function is called if it is x cube? Himanshu, what it is called the function if it is x cube? Cube function. Shabash. Daksh, what is the function called x cube plus 3x square plus 4x minus 1? Polynomial. शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, शाबाश।
बहुत अच्छे. Draw the diagram with me and try to understand the concept. This is 2, 1, 0, -1, -2, -3, 2, 1, 5, 6, and -1. Now they are related as 2 is related to -3, 1 is related to 1. This is given in the question only. 0 is related to 2, -1 is related to 5, -1 is also related to 1, -1 is also related to 1, and -2 is related to 5. Draw this. Draw this. हो गया. हो गया. अब आप मुझे बताओ, इसमें आपको कोई रिलेशन दिख रहा है? और एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, चलो वो भी जाने दो. ये फॉर्मूला बनाने के लिए आपको टफ पड़ेगा अभी ये टाइम पे. डोंट थिंक ये फॉर्मूला बन रहा है. अभी एक बात समझना, इसका हर एक नंबर, किसका? पहले वाले का. सपोज मैं लेता हूँ x और ये लेता हूँ y. बहुत ध्यान से सुनना. इसका हर एक नंबर इसके नंबर के साथ कनेक्शन में है. इसके पास एक्स्ट्रा नंबर बचे, उसका कोई टेंशन नहीं है. इसके पास एक्स्ट्रा नंबर बचने दो, चलेगा. मेरा कहने का मतलब है x का वैल्यू y के वैल्यू के साथ कनेक्टेड है या ना? यहाँ पे कोई भी होगा तो चलेगा. दिस इज मैनी वन फंक्शन, दिस इज मैनी वन फंक्शन. माय पॉइंट इज इफ एवरी वैल्यू ऑफ x, ध्यान से सुनना, every value of x should be connected with at least one or more than one value of y. At least one value, so 1 is connected to 1, -1 is also connected to 1. Every value of x has some relation with y, isn't it? यहाँ पे कोई नंबर बचना नहीं चाहिए. यहाँ पे कोई नंबर बचना नहीं चाहिए. यहाँ पे नंबर बचा तो चलेगा. इसका जो भी है कनेक्शन y के साथ मिलता है या नहीं, वो बताओ. है. Yes, so we मिलता can है. say it is a function. Yes, write Yes. down it is a function. एकदम मैं इजी तरीके से समझाया, डिटेल में नहीं समझाया. मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाया कि x, अगर x और y लिया तो ये बहुत समझने वाली चीज है बाबा, बहुत समझने वाली चीज है. मैं बहुत सिंपल तरीके से ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए. x की हर एक वैल्यू y की एक या एक से ज्यादा वैल्यू से मैच होनी चाहिए या क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो फंक्शन है. बराबर. दूसरा, एक ही वैल्यू, कोई x की एक ही वैल्यू दो y की वैल्यू के साथ मैच नहीं होनी चाहिए. मतलब इसकी इमेज इसके साथ एक के साथ एक ही आना चाहिए. भले y के साथ दो नंबर हो चलेगा. अभी देख, इसका एक वैल्यू 1 के साथ, जरा इसका भी एक वैल्यू, ये दोनों वैल्यू किसी एक नंबर के साथ मैच नहीं होनी चाहिए. जैसे कि मैं बताता हूँ b वाला टाइप, इट इज अ फंक्शन लिखो. अभी आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. सॉरी. ये क्वेश्चन होने के बाद आप डाउट पूछो मेरे को. PQRS, PQRS.
and A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Abhi P is connected with A. Okay, P is connected with A. Q is connected with C. Q is connected with C. R is connected with B and D. R is connected with B also, and R is connected with D also. This is connected to S. Now, यहाँ पे देखो R जो है वो X की दो वैल्यू, X की एक वैल्यू, Y की दो वैल्यू के साथ कनेक्टेड है. इसमें ऐसा कोई नहीं था. इसमें X की एक वैल्यू, Y की एक या एक से ज्यादा वैल्यू से कनेक्टेड है, चलेगा. लेकिन X की एक वैल्यू Y के दो वैल्यू से कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए. जैसे R जो है वो B और D से कनेक्टेड है, देखो ये नहीं चलेगा. सो इट इज नॉट अ फंक्शन. Yes, tell me. Now you can ask me a question. सर एक बार वापस रिपीट करो ना, मेरा नेटवर्क इशू हुआ था. R की वैल्यू B और D दोनों से कनेक्टेड है, वो नहीं चलेगा. Yes, very good, Dimanshu. R is connected with B and D. One value of X cannot have two values of Y. Then that two are different. So here we can say R equals to B and R equals to D. How it can be possible? It cannot be possible. हाँ, यहाँ पे possible था 1 equals to 1 और minus 1 equal to 1. ये possible है. तो 1 का स्क्वायर भी 1 है, minus 1 का स्क्वायर भी 1 है. लेकिन R की दो वैल्यू B और D ये possible नहीं है. So it is not a function. Getting it? कर लगा मधुश्री? हाँ सर, समझा. शाबाश. 3 minus 2 1 0 2 4. This is given 9 7 6 minus 6 3 2. हाँ, ये 3 is connected to 7. Minus 2 is not connected to anything. 1 is connected to 9. 0 should be connected to minus 6. Okay. And 2 is connected to 3. And 4 is connected to 2. Tell me, क्या आना चाहिए? X की हर वैल्यू Y के साथ कनेक्टेड है? नहीं सर. नहीं है तो क्या लिखोगे? It is not a function. शाबाश. Please ask. No doubt. शाबाश. Very good. बहुत बढ़िया. दक्ष, रिया. हाँ समझा. Very good. Yes, sir, समझा. बहुत बढ़िया. हो जाएगा तो बोलो. सॉरी. डन. फिलहाल के लिए क्वेश्चन 2 स्किप कर रहा हूं मैं. विल कम बैक टू क्वेश्चन 2. विल स्टार्ट क्वेश्चन 3. ओके. प्लीज रिमाइंड मी आफ्टर doing all these sums. We have left question 2 as of now. Okay. थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट है वो बाद में देखेंगे. But we'll start with question number 3. If Fm is equal to, see this is very easy. Huh? Fm is equal to m square minus 3m plus 1. Find. अभी इससे आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में.
A equals to F0, B is F minus 3, C is F1 by 2, D is Fx plus 1, E is F of minus x. F of minus x. चलो देखो ध्यान से, अपने को क्या दिया है, एफ एम का वैल्यू एफ ऑफ एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है F0। अभी यहाँ पे m की जगह पे क्या है, जवाब आना चाहिए m की जगह जीरो जीरो। तो जहाँ पे m है उधर 0 आ गया, तो यहाँ पे भी m की जगह पे 0 डाल दो। 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1, आंसर आएगा 1। 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 1 विल बी 1। सो सिंपल। सर नेक्स्ट इज हमें फंक्शन भी लिखना है। कुछ भी नहीं, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट इज m को रिप्लेस कर दिया किसने, -3 ने। m को रिप्लेस कर दिया किसने, -3 ने। तो m की जगह पे डाल दो -3 का स्क्वायर, 3 इंटू -3 प्लस 1, -3 का स्क्वायर 9, minus minus 3 9 plus 1, answer will be 19। now solve rest of the sums और फिर मैं सॉल्व करूंगा और आप चेक करोगे। any questions please ask। only you have to replace m with the numbers given in the bracket, as simple as that। x होगा तो x आएगा, हाफ होगा तो हाफ आएगा, x प्लस 1 आएगा तो x प्लस 1 आएगा, y होगा तो y, जहां जो होगा वो आएगा। सॉल्व करो और बताओ मुझे आंसर। आंसर आप कोई बोलना मत, मैं डाल दूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, आप चेक करना फिर राइट है कि रॉन्ग है। इसमें कुछ समझना है तो बोलो। हो गया तो बोलना। सो हो गया।
सर आप म्यूट पे है। चलो, ये एलसीएम ले लिया, 4 2 और 1 का एलसीएम आ गया 4, ठीक है, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 1 4 जा 4, तो 1 into 1 1, 2 3 जा 6, 1 into 4 4, आंसर है 1 minus 1 by 4. x plus 1 को रिप्लेस किया, a plus b the whole square, a square plus 2ab plus b square, minus 3 into x minus 3x, minus 3 into 1 minus 3 plus 1, x square का x square, 2x minus 3x आया minus x, 1 plus 1 2, 2 minus 3 will be minus 1, और x को minus x के रिप्लेस करो, minus x का स्क्वायर minus 3 into minus x plus 1, minus x का स्क्वायर आएगा plus x square, ये minus आएगा plus 3x and plus 1. बोलो, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? Any questions? Reply. Reply करते नहीं आप लोग यार? सर No, एक sir. 1/2 वाला समझाओ ना। कौन सा? ये वाला 1/2 वाला, चलो, हाँ। 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4, minus 3 into 1/2 आएगा 3/2 plus 1, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ही है, इसमें से कॉमन मतलब कॉमन मल्टीपल आएगा, लोएस्ट मल्टीपल आएगा 4, 4 into 1 4, इसको भी 4 लाऊंगा, इसको भी 4 लाऊंगा, इसको भी 4 लाऊंगा, क्योंकि एलसीएम 4 लिया, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से और इसको 4 से, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4, ये 1 into 1 ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई किया तो इसको बुरा लग जाएगा ना, तूने सिर्फ इसको दिया, इसको क्यों नहीं दिया, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी कर, 1 into 1 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 into 3 6, इसको 1 से 4 1 जा 4, this called as LCM. Got it. चलो, क्वेश्चन नंबर, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछो. Question number 4. Find x if g of x equals to 0. This is given to us, where gx equals to 5x minus 6 upon 7, gx equals to 18 minus 2x square by 7, gx equals to 6x square plus x minus 2. चलो, बहुत ध्यान से समझना, मैं तीनों सम करूंगा, बाद में आप लोग लिखना. We have given gx equals to 0. First, gx equals to 5x minus 6 upon, gx का वैल्यू कितना है? 0, equals to 5x minus 6 by 7, ये 7 इधर आएगा, तो 0 into 7 कितना होएगा? 0 is equal to 5x, ये minus 6 इधर आएगा, 0 plus 6 will be 6 is equal to, ये 5 को नीचे लाओ, x is equal to 6 upon 5. नंबर 2, कोई क्वेश्चन है तो अभी बोलो. gx is equal to 18 minus 2x square by 7, gx का वैल्यू है 0, 18 minus 2x square by 7, 7 into 0 will be 0, 18 minus 2x square, ये minus 2x square ये बाजू लाओ, 2x square equals to 18, x square is equal to 18 by 2 which is 9, x की वैल्यू आएगी प्लस और माइनस 3. बोलो, कोई क्वेश्चन? एंड लास्ट वन, third one is gx equals to 6x square plus x minus 2, gx का वैल्यू है 0, 6x square plus x minus 2, 6 2 जा minus 12 का फैक्टर निकालो,
1 लाने के लिए। ऐसे दो नंबर जिसका एडिशन 1 और मल्टीप्लीकेशन -12, बोलो। -4 और +3। शाबाश। -4 क्यों, +4 क्यों नहीं? ये प्लस एक्स चाहिए मेरे को क्योंकि इधर। -12 चाहिए ना। तो 4 -4 की जगह पे 4 -3 लूंगा तो भी आएगा, और ये प्लस एक्स कैसे आएगा? अगर आप -4 लोगे तो ये प्लस एक्स कैसे आएगा? हाँ तो 4 और -3। हाँ सेम ही है ना दोनों, कुछ भी ले लो अपना ही है कि नहीं? 3x² -6x² -3x + 4x -2, दोनों में से क्या कॉमन आएगा? पहले दो टर्म में से क्या कॉमन? 2x। क्यों 3x क्यों नहीं? 3x। 3x कॉमन, बचेगा 2x -1, 2 कॉमन, बचेगा 2x -1, 2x -1 कॉमन, 3x + 2 = 0. So this will be 2x -1 = 0 and 3x + 2 = 0. So you can say 2x equals to 1, x equals to half, and 3x equals to -2. 3x equals to -2, x is equal to -2/3. कौन सा समझाऊं बताओ? कौन सा समझाऊं बताओ? हो गया। चलेगा? हाँ हाँ सर हो वेरी गया। गुड, हो गया। चलो बढ़िया, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। मजा आया? मंडे को मिलते हैं। आगे सर कंफर्म? हाँ बोलना बेटा। सर लास्ट वाला समझा सकते हो वापस? बोलो आगे। लास्ट वाला हाँ क्यों नहीं समझा सकता? 6 × -2 कितना होता है? 12। -12 का ऐसा, -12 का फैक्टर निकालना है 1 लाने के लिए। ऐसे दो नंबर जिसको ऐड करूंगा तो +1 आएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 आएगा, are 4 and -3. So if you multiply 4 into -3 you will get -12. If you add 4 - 3 you will get +1. So I have replaced plus x as 4x -3x + 4x -3x + 4x. Getting it? So पहले दो टर्म में से 3x कॉमन निकला, 2x - 1 बचा,
दूसरे दो टर्म में से 2 कॉमन निकला, 2x माइनस 1 बचा, दोनों में से 2x माइनस 1 कॉमन निकला, 3x प्लस 2 बचा इक्वल्स टू 0. दिस मीन्स 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. So now you compare this equals to 0, ये minus 1 उधर जाएगा, plus 1, 2x equals to 1, then x equals to 1 by 2. Similarly, if you compare 3x plus 2 equals 0, plus 2 उधर जाएगा, minus 2, और ये 3 नीचे आएगा, x is equal to minus 2 by 3. Yes, sir, समझा. शाबाश, very good. Thank you. बहुत बढ़िया. चलो, bye bye, see you on Monday. Bye. कोई टाइम टेबल पोस्ट कर देना. चल, अपना टाइम टेबल ग्रुप पे डाल दे. हाँ सर. चलो, bye bye. Bye, Good night, sir. see you on Monday. Bye, sir.